کافی دنوں کے بعد؟ جی الحمدللہ خان صاحب اور دیگر دوست، اللہ کا شکر ہے۔ اصل میں آج کل آپ کو شاید پتہ ہے کہ نہیں کہ جامعہ ختم نبوت بنایا ہے گجرانوالہ میں، تو اس میں ہی بس دن رات صرف ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ ختم نبوت کے کاموں کے اندر 24 گھنٹے مصروف ہو گئے ہیں۔ تو بس یہ ٹک ٹاک کے اوپر پھر کبھی کبھی آنا ہوتا ہے۔ ابھی میں سن رہا تھا کہ وہ مرزے کو صاحب کہیں تو سننے والے جو ہیں وہ کیا سمجھیں گے، تو بڑی خوبصورت بات خان صاحب نے سمجھائی ہے کہ ہم سین سے صاحب کہتے ہیں، نہ کہ سواد سے صاحب۔ صاحب کا مطلب دوست ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے، ہمراہ ہوتا ہے، تو عزت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن مرزے نے یہ لفظ صاحب کا خود استعمال کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سب صابین، میں لوگوں کو گالیاں اس وجہ سے دیتا ہوں کہ یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ اس نے خود اپنے آپ کو صاحب بولا ہے، تو اس لیے ہم مرزے کو صاحب کہتے ہیں۔ رہی بات سننے والوں کی، تو سننے والوں کو بھائی پھر سننے والوں کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھ آتا ہے۔ ہر سننے والے کا تو ہم نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا کہ وہ سننے والے اب وہ صحیح سنیں۔ سماعت کمزور ہو سکتی ہے، علم کمزور ہو سکتا ہے، اور بڑے معاملے ہو سکتے ہیں۔ وہ سننے والے کی کمزوری ہے، اب ہماری تو کمزوری نہیں ہے۔ اور رہی بات یہ کہ قادیانیوں کے ساتھ مکالمات کرنے والے اور سننے والے عمومی وہی ہوتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جو ہمیں سن رہے ہوتے ہیں۔ تو جو نیا نیا آیا ہے وہ 4 دن رہے گا تو وہ خود ہی سیٹ ہو جائے گا، اس کو سمجھ آ جائے گی۔ پھر اگر ابھی سمجھ نہیں آئی تو اس کو سمجھ آ جائے گی، بس اتنا ہی ہے۔ تو اس قسم کی اور بڑی چیزیں ہیں، یہ صرف ایک صاحب والی بات نہیں ہے، اور بڑی باتیں ہیں۔ تو دوران ڈیبیٹ معاملے کچھ اور ہوتے ہیں، جب ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں کے معاملات الگ ہوتے ہیں۔ جی کریں بات۔ جی اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا کرے۔ اللہ پاک آپ جو کام کر رہے ہیں، اللہ پاک اس میں آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے لیے اپنے رحمت کے، اپنے غیب کے، اپنی برکت کے خزانے کھولے، اور اللہ آمین پاک آپ کو کسی کا بھی محتاج نہ ہونے دے، دنیا میں آمین جی آخرت میں بھی۔ آمین جزاک اللہ جی۔ آمین جی آمین۔ اس سے پہلے استاد محترم ہم بات کر رہے تھے غزوہ ہند کے بارے میں، اور کچھ اس کے بارے میں موقف رکھتے ہیں کہ غزوہ ہند ہو چکی، جبکہ مرزا قادیانی وہ جو کہتا ہے کہ خونی مہدی اور خونی مسیح۔ اب خونی مسیح سے بھی ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ مانتا ہے مرزا قادیانی کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، اور وہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ جنگ کریں گے، کیونکہ یہ تو سرے سے انکاری ہے نا کہ وہ تو آ کے جنگ ہی نہیں کریں گے۔ تو یہ مرزا قادیانی نے اپنے دور میں بھی گورنمنٹ کو خوش کرنے کے لیے یہ بڑی باتیں کی کہ نہیں وہ سب کچھ ہو چکا، یہ مسلمانوں کے عقیدے غلط ہیں، یہ تم لوگوں کو ایک نہ ایک دن مٹانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، تاکہ تم محتاط ہو جاؤ۔ اور اس نے یہ جذبہ، یہ چیزیں جو کہ مسلمانوں کی تسکین کے لیے ان کو اس نے بگاڑنا چاہا۔ تو آپ سعد محترم بتائیے گا کہ غزوہ ہند اور پھر امام مہدی کا جنگ اور عیسیٰ علیہ السلام کی جنگ کا، اس کے بارے میں تھوڑا۔
जी ये तो जो रवायतों के अंदर जो चीज़ें आ गई हैं, और मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खबर दी है, जिस जिस चीज़ के बारे में भी खबर दी है, हम उसको दिलो ईमान से मानते हैं और कबूल करते हैं। जहाँ तक बात है कादियानियत की, तो कादियानियत तो झूठ दजल फरेब का दूसरा नाम है। कादियानियत की किस बात का यकीन किया जाए, उनकी कोई बात सच्ची है ही नहीं भाई। देखिए 24-24 घंटे आप लोग वर्क करते हैं, यहाँ पे सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं, और आपने देखा होगा कि कादियानियों को आप मुकालमात के लिए बुलाते हैं। क्या हो भाई, अगर तुम्हारे अंदर कोई सच्चाई है, कोई हकानियत है, या तुम कहते हो कि हम सच्चे हैं, हकीकी इस्लाम के दावेदार हो तुम लोग, तो आओ सामने आके बात करो। बात नहीं करते। और आज आके अगर कोई कादियानी आ ही जाता है तो वो भाई ले जाता है, मौलवी झूठ बोलता, मौलवी आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक है, वो दो चार गालियां निकालेगा, वो बस फिर दौड़ने की करेगा, आखिर में कोई उज़र तलाश करेगा। बीच में किसी ने भी कोई बात थोड़ी सी कर दी, कोई मिर्ज़े कादियानी की किताब का हवाला दे दिया, चलो जी हवा टाइट हो गई जी, नहीं मैंने नहीं बात करनी। क्यों जी, बात क्यों नहीं करनी? तुमने असल में मिर्ज़े की किताब खोली है। तो ये है कादियानियत, दज्जल फरेब, मक्कारी, झूठ, इसी चीज़ का नाम कादियानियत है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हम तो इनको अल्लाह लेलान इनको दावत मुकालमा देते हैं। हम भाई मुकालमात वाले, हम कोई लड़ाई झगड़े वाले नहीं है। ये ड्रामेबाजियाँ करते हैं, और देखो जी पाकिस्तान में मार दिया, कुट दिया, धुआं निकाल दिया कादियानियों का, इबादत गाहें जला दी, ये कर दी, ड्रामेबाजियाँ। वही हम कहते हैं भाई इधर कादियानी इधर आ, इधर कोई मार कुटाई नहीं हो रही, कोई जलाओ गिराओ नहीं हो रहा, इधर मुकालमा हो रहा है, मुकालमा करना है। तू हमसे बातें कर रहा है जी, मार दिया कुट दिया जालम और हम मजलूम, ये कौन सा तरीका है जी? तो बहरहाल ये कुछ भी नहीं कादियानियत, कुछ कोई एक अज तक कोई सुर स्वाद नहीं आया किसी दुनिया का कोई एक कादियानी मैनू तो अज तक नहीं टकरिया कि जिन्हें कभी कोई सुर स्वाद की कोई गल की होए, सिवाय बक 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 बक। चलो जी वो निकल दी एज भाई जी। उस्मान जी उस्ताद जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम। उस्ताद जी अज मैं ना एक आडियो सुनता पिया मरबी दी व्हाट्सएप ते सी, उनदे च उन्हें कीता जेड़ा वे सुन्नियां दा बयान कीता। वो आंदा जी जेड़े सुन्नी लोग ने ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दी आमद एक यानी कि एक नबी दी आमद दे भी मुंतज़र ने, ते कुरान दोबारा जेड़ा नाज़ल होने दे मुंतज़र ने। ये जेड़ा मरज़ाइयां दा कीता है ये असल ते यानी कि है कि ये यानी ये वाला कीता कादियानियों का मरज़ाइयां अकीदा ये है कि देखो जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर 2 दफ़ा आना था। तो पहली दफ़ा वो 1200 साल पहले मक्का में पैदा हुए और मदीना में मदफून हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरी दफ़ा कादियान के अंदर पैदा हुए और लाहौर के अंदर टट्टी मूत्र करते हुए 26 मई को वासिले जहन्नम हुए। ये है कादियानियों का अकीदा, ठीक है। और कादियानियों का ये अकीदा है कि कायनात के अंदर जो कुछ भी है वो मिर्ज़ा कादियानी के अंदर समाई हुई है, हत्ता के खालिक भी मिर्ज़ा कादियानी है और मखलूक भी मिर्ज़ा कादियानी है। मिर्ज़े के दावा जात की बात करते हैं तो वो खुद अल्लाह होने का दावा करता है, अल्लाह की बीवी होने का, अल्लाह का बेटा होने का दावा करता है। वो कहता है इस कायनात को मैंने तख्लीक किया है, मैंने बनाया है। फिर जब मखलूक की तरफ आता है तो वो कहता है आदम से लेके मोहम्मद तक तमाम नबी मेरे अंदर ही समाये हुए मैं ही हूँ। फिर जनाब वो कभी खाना काबा बन जाता है, कभी हजरे अस्वद बन जाता है। फिर वो कुरान कहता है जी मेरे ऊपर नाज़िल हुआ है।
फिर जनाब हिंदू सिख ईसाई यहूदी इनके जितने बड़े थे या मतलब गैर मुस्लिम तो जितने भी हैं, इनके बड़े बड़े जो लोग थे, इनके रहनुमा लोग जो थे जिनके ये इत्तबा करते हैं, ये जितने भी मज़ाहब हैं, तो वो कहता है सारे के सारे मैं ही हूँ। ज़रतश्त भी मैं हूँ, कृष्ण कन्या भी मैं ही हूँ, बुधा भी मैं ही हूँ, सब जनाब वो इसके अंदर समा गए हैं जनाब। अब बंदा जाए तो जाए किधर, और कादियानियों से गुफ्तगू करे तो कौन सी करे। वो कहता है गीता मेरे बारे में है, ग्रंथ मेरे बारे में है, वेदें आधे मोहतरम को लगता है कॉल आ गई है शायद ना। कासिम भाई आप इस ऑडियो की बात कर रहे हैं ना? ये हेलो, जी उस्ताद मोहतरम। आवाज़ कब से नहीं आ रही थी? अभी 10 सेकंड हुए हैं। अभी ये ना खुद ही माइक म्यूट हुआ है, पता नहीं, फिर मैंने तो नहीं किया था। जी उस्ताद जी आप बोल रहे थे वेदा की बात आ रही थी, यानी कि तो ये है कि वो दुनिया की हर किताब को, हर मजहब की किताब को उसने अपने ऊपर चिस्मा कर लिया, वो सारी मेरे बारे में है और मेरे ऊपर ही नाज़िल हुई। बताइए बंदा कादियानियों के साथ गुफ्तगू करे तो किस मौजू पर गुफ्तगू करे? कोई एक मौजू बता दे। कायनात और माफिया की हर चीज का इतलाक मिर्जा कादियानी ने अपने ऊपर कर लिया। बताइए मौजू कौन सा है? मैं तो आज तक जिंदगी मेरी इस काम के अंदर सरफ हो गई है। मैं आज तक खुदा की कसम तलाश कर रहा हूँ कि कादियानियों का मौजू कौन सा है, किस मौजू पर बात करनी है इन लोगों ने। जी बात करें। जी उस्ताद जी ये उस्मान भाई के पास ऑडियो मैंने भेजी थी, इनको वो ना सुन ले एक बार। उस्मान में लगा मैं देगा। दिखा तो आपको मैं कुरान से भी सकता हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। दिखाई वो चीज़ जाती है जब कोई डिफरेंस हो। इसमें हमारा और आपका अकीदा सेम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये क्या है? आप लिख दो इसमें हमारा और आपका अकीदा सेम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को क्या मानते हैं। अभी आपने कहा आदल हुक्मरान, इतना सिंपल नहीं है। आप लिख दें कि ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत को मैं कैंसिल मानता हूँ, और फिर मुझे वो एफपी पे लगाने की भी इजाजत दें। ठीक है, सुन लीजिए, बंद करें बस। यही ईसा अलैहिस्सलाम मौजू यही रह गया इनके पास, ईसा नहीं अलैहिस्सलाम। वो जो उस्ताद मोहतरम आगे बात कर रहे हैं ना वो सुनने वाली है, मज़ाइका खेज है आगे। एक बात सर जी आपका अकीदा है कि वो नबी होंगे, और ना सिर्फ नबी होंगे, उन पर कुरान दोबारा नाजिल होगा। ये अहले सुन्नत का अकीदा है। आपका अकीदा बता रहा हूँ मैं आपको। ये है जी कि वो कह रहे हैं कि अहले सुन्नत का अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी के बाद उनके ऊपर दोबारा कुरान नाजिल हो। नहीं, ये हमारा अकीदा नहीं है। झूठ का तो कोई इलाज नहीं है ना भाई, झूठ का कोई इसको लित्रों की टकोर की जरूरत है इस मरज़ई को बस। यार सुन, दुनिया के हर कादियानियों को इस चीज की जरूरत है। कोई एक बंदे के मखसूस ना करें, सारे सब लित्रों की जरूरत है इनको, और कुछ भी नहीं। बंदा किस मौजू पे बात करे, कोई मौजू जैसे सादे मोहतरम, जैसे हम बचपन में सुना था ना कि ये 14वीं सदी क़यामत वाली सदी है, तो ये कादियानियों की तरफ से फैलाई गई बात है, क्योंकि मिर्ज़ा कादियानी को फिट करते थे, ये लोगों में फैलाते थे बातें। अब ये मिर्ज़ा कादियानी कहता है मेरे ऊपर कुरान नाज़िल हुआ है, और अब ये बातें फैला रहे हैं कि असल में ये अहले सुन्नत का अकीदा है। ताकि बस वो हर चीज को अहले सुन्नत में डाल देते हैं ना। 14वीं सदी का जो लफ्ज है वो हदीस की, दुनिया की किसी हदीस ना ही सही तो ना ही ज़ईफ, ना ही मौजू है ही नहीं। ये चैलेंज है कादियानियों को। 14वीं सदी का तो जिक्र तक दूर दूर तक कहीं तक मिलता ही नहीं है। हाँ जी, ये 14वीं सदी का शोशा उड़ाया था मिर्ज़ा कादियानी ने। वो ये वाला वाक़या भी आपने सुना होगा, वो के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो जो भेड़िए तो वो जी भेड़िए ने कहा जी मैं नहीं तो 14वीं सदी दे मौलवी हुंदा जी जी जे मैं यूसुफ नूं खादा हुंदा। तो ये सब गप्पे इन्होंने कादियानियों ने उड़ाई हुई हैं। ये कादियानियों की उड़ाई हुई है, ये शोशे हैं। हाँ, है ही कोई नहीं, कहीं नजर ही नहीं आता। ड्रामेबाजी कर लो जितनी मर्जी कर लो, बक 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 के अलावा कुछ भी नहीं है कादियानियत।
घंटों भर हमारे मुजाहिदीन का ना टाइम ज़ाया करते हैं, पानी में मदानी डाल के बैठे रहते हैं। इधरों एक जगह से पकड़ेंगे दूसरी जगह पे निकल जाएंगे, दूसरी जगह से जाके पकड़ेंगे तीसरी जगह पे चले जाएंगे छलांग लगा के, बस बंदरों की तरह ना दरख्त बदलेंगे और कोई काम नहीं होता। आप दुनिया के किसी कादियानी की डिबेट सुन लें, बस यही जो मैंने खुलासा बता दिया, ये खुलासा है बस। बिल्कुल उस्ताद मोहतरम ऐसे ही है। बस वो जो बात भी मुसलमान करेंगे ना, जो बात भी करेंगे, अगर इनकी तो यहाँ तक नौबत आ चुकी है, अगर मुसलमान कहता फिरेगा ना अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह वाहिद है, तो ये लोग तासुब में पानी में मदानी डालने के लिए, उसका भी इनकार करने के लिए कहेंगे नहीं जी आजो आजो, हमारा अकीदा तो ये है कि मिर्ज़ा कादियानी भी है, अल्लाह बातें फैलाओ। मुसलमानों के यानी कि मुखालिफ चलना ही चलना है, ये इनकी असल सोच होती है इनकी। किसी भी मुसलमान ने कोई अकीदा रख लिया कहीं पे जाके, वो अगर आपस में भी कोई मुसलमान डिबेट कर रहा है या मुसलमान किसी मुल्क से डिबेट कर रहा है, किसी हिंदू से कर रहा है, इनको चिढ़ चढ़ जाएगी कि मैं ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात हो, मैं जाके ख़िलाफ़ बोलूँ कि भाई तुम क्यों बात कर रहे हो हिंदू से, तुम क्यों दलाइल दे रहे हो, हमें बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि तुम दलाइल दे रहे हो और साबित कर रहे हो कि मुसलमान जिनके बारे में हमने तो फैलाया हुआ था कि इस्लाम दुनिया से उठ गया है, ये तो बदतरीन मखलूक हैं, और ये क्यों इस्लाम की सच्चाई में दलीलें पेश कर रहे हैं। नफ़रत इनको बड़ी होती है। वो जमील युद्दीनी है, वो एक दिन ना पता नहीं किसकी डिबेट हो रही थी, तो उसको चिढ़ चढ़े नीचे बैठ के कि मुसलमान क्यों दलाइल दे रहे हैं, हम में से तो कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ आज तक कि ये बात कर सके और जाके दलाइल दे सके। शायद ज़ियाब भाई थे वो बनी इसराइल वालों को जब वो अब ये उस्मान रात को ही हमने बराड़ जो की तकरीबन 4 घंटे की बराड़ की। अब बात वहाँ पे हो रही है मिर्ज़ा जूनियर जेल में की, ठीक है जी। अच्छा, वो डिबेट जो करने के लिए आए थे ना बंदे, जो अपने आप को कह रहे थे जी हम मिर्ज़ा जूनियर जेल में के स्टूडेंट हैं, वो थे असल में कादियानी। अब नीचे जाके वीडियो में देख लें, नीचे मैं अभी देख रहा था कमेंट, वो कादियानियों के कमेंट आ रहे हैं जो अपने आप को शो कर रहे हैं जी हम मिर्ज़ा जूनियर जेल में के स्टूडेंट। अब रोला ये है कि अब ये खुल के सामने नहीं आ सकते, अब इनको चाहिए सहारे और आसरे कि कहाँ पे जाके ये अपनी गलाजत निकाल सके। उन्होंने एक मोहरा बनाया हुआ है मिर्ज़ा जूनियर जेल में को कि ये कादियानी या राफजी हैं, राफजी टोला और कादियानी टोला, इन दो ने तो ये ड्रामा पकड़ा हुआ है ना। बस जनाब हम तो स्टूडेंट हैं, मिर्ज़ा साहब के स्टूडेंट, क्योंकि इन्होंने करनी होती है गुस्ताखी, तौहीन, और इनको कोई नुक्कड़ मिलती नहीं है, तो ये फिर सहारा लेते हैं, आसरा लेते हैं मिर्ज़ा जूनियर जेल में। ये बगैरतियाँ, अब ये देखें ये नई बगैरतियाँ इनकी शुरू हो गई। हाँ जी, और हमारे भी कुछ भोले भाले मुसलमान और दोस्त, वो भी जनाब इनके साथ तल्लक वास्ते कायम करके चलो जी चलो, गिरती दीवार को एक धक्का और सही, मजबूत करो काम को। हाँ जी, वो भाई यार बात ये है कि अभी थोड़ी देर पहले मैं वो बराडे देख रहा था, तो वो मिर्ज़ा जूनियर जेल में के मरज़इयों की बराड़ लगी हुई है, तो उसमें साथ ना एक दो मैंने देखा कि लड़के बैठे हुए हैं जो हमारे पास भी कभी कभी आते हैं। मैं देख के हैरान परेशान, लो जी हो रहा है जी, कादियानियों का रद्द हो रहा है जी, रद्द हो रहा है जी, हम रद्द कर रहे हैं जी, और खलीफा वक्त भी बीच में बैठा हुआ है। हाँ जी, ये हो रहा है, ड्रामेबाजी हो रही है, क्या किया जाए यार, ये करें बात। शाह जी, आज मैंने अपने कुछ मुसलमान भाइयों को देखा है बनी इसराइल की बराड़ पे बैठे हुए हैं, और वहाँ पे वो बैठ के कादियानियों का रद्द कर रहे हैं, कादियानियों के ऊपर बात हो रही है।
तो एक मुसलमान ने ऊपर आकर कहा यार कि आप लोग कादियानी उस लानती के बारे में बात कर रहे हो जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख था, तो उसके बारे में ऐसे बात कर रहे हो, उसको जो ना लानत भेजो, ये करो वो करो। खैर उन्होंने उसको नीचे उतार दिया। तो मैं तो ऊपर बैठा हुआ था, सुन रहा था इन मुसलमान भाइयों की बातें, क्योंकि मेरी वो जो होस्ट है ना वो उससे थोड़ी सी हेलो हाय है, तो मैं उसके साथ डिबेट वगैरह करता रहता हूँ। तो मैंने फिर ये बात कही वहाँ पे, मैंने कहा यार ये कह रहा है कि गुस्ताख हैं कादियानी, वो नहीं जानता कि इस ब्राड़ में जितने बैठे हैं ये सब भी मेरे नबी के गुस्ताख हैं। वो सारे चुप कर गया आगे से। ये खलीफा वक़्त भी था और 2 और 3 और भाई भी बैठे हुए थे। यार उन लोगों की ब्राडों पे बैठकर आप लोग सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हो, जो सबसे बड़े गुस्ताख वो खान साहब रात वाली जो हमारे ख़त्म नबूवत टाइम जो यूट्यूब का चैनल है उसके ऊपर जो लाइव डिबेट हुई है आप देखें, 2 मरज़ई बैठे थे जो अपने आप को कह रहे थे जी हम मिर्ज़ा जूनियर जेलमी का स्टूडेंट हैं। यकीन जानिए वल्ला वो जब उसकी स्टेटमेंट मैंने सुनाई कि मिर्ज़ा जूनियर जेलमी कहता है जी मेरी ये करामत है कि जिस तरीके के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 4 सहाबा थे, हक 4 यार, वैसे मेरे साथ भी 4 हैं। वो 4 अपने यूट्यूब के चैनल का नाम लेता है। फिर कहता है जी जैसे अशरा मुबशरा थे मेरे साथ भी अशरा मुबशरा हैं। 2 बंदे सामने उसके बैठे होते हैं, कहता है उनमें आप भी शामिल हैं, यानी आप भी अशरा मुबशरा में शामिल। फिर कहता है अब तो 313 भी साहबी हो गए हैं मेरे, और जनाब जो जैसे नबी करीम के सहाबा बढ़ते जा रहे थे वैसे मेरे भी अब बढ़ते जा रहे। जब ये स्टेटमेंट मैंने सुनाई तो उन बगैरतों के मुंह से मैंने रत्ती बराबर भी कोई जनाब कोई इसके मतलब ये नहीं सुना कि भाई इसने गलत बात की है या कोई मजम्मत कर देता है, कोई मजम्मती बंदा बयान दे देता है ना, उसकी वो तबीलें करनी शुरू कर दी। कहते हैं हाँ वो असल में फजीलत के तौर पे है, वो ऐसे है तो वो ऐसे है। मैं आपको बताऊं खुदा की कसमें कादियानियों के ऊपर मुझे बड़ा गुस्सा है और कादियानियों को मैं अपना दुश्मन समझता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा जब से ये मिर्ज़ा जूनियर जेलमी और इसके मरज़ई छोकरे आ रहे हैं ना, इनको मैं कादियानियों से भी बड़ा दुश्मन समझ। ये कादियानियों से भी बड़े खबीस और खंजीर सिफत हैं और ये सबसे बड़े लानती हैं। दुनिया के हर काफर से बदतरीन ये मखलूक है और इतना इनके ऊपर आता है कि वो मिर्ज़ा जूनियर जेलमी वो इतनी तौहीन करता है अल्लाह की, अल्लाह के नबियों की तौहीन। फिर मैंने वो स्टेटमेंट सुनाई वो मिनी खुदा वाली ना, उसके ऊपर भी तवीलें शुरू कर दी। ये है मरज़ियत जो कादियानियों से भी 10 हाथ आगे चली गई है। हाँ जी, तो ये बात है ये। और इनके साथ जो बैठते हैं मुसलमान, मुझे तो उनके भाई अब शक हो रहा है यार ये कैसे है यार, ये कैसे बंदा ना उनको छोड़ के इन मुसलमानों को लितर परेड करे कि भाई तू उत्थे की लैन गया सी, तू की तेनू तू एडा भुखा में शोहरत दा कि तेनू और शोहरत वास्ते तू उन्हां दे कोल जाना है पिया, या तेनू और कोई पैसे देंदे ने, या तेनू कादी लालच मर जे तू उन्हां दे गोद विच जा के बहना है, तो फिर गुस्सा इनके ऊपर ज्यादा आता है। तो ये मामलात हैं जी खान साहब। बस वो मरज़ई और राफजी जो है ना खान भाई, उनको कोई नुक्कड़ मिले कि बस वो तौहीन करना चाहें, फ़िरका वारियत करना चाहें, फितना फैलाना चाहें, उनको नहीं पता होता कि कौन सा प्लेटफार्म है, उनको नहीं पता कौन सी जगह हैं। और वो जो इस बनी इसराइल वाले, मैंने भी देखा 1-2 बार के कादियानियों के ख़िलाफ़ जानबूझ के ब्राड चला के वो लड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और एंड उनका भी गालियाँ, तौहीन, गुस्साखियाँ, ये होता है एंड उनका। तो बस ठीक वही यार बात। दोस्तों मेरे जामिया का टाइम हो गया है नाइट क्लास का, तो जामिया ख़त्म नबूवत गुजरांवाला में क्लासें हो रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन काम आगे बढ़ रहा है
اور کام کے اندر نکھار پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے جامعہ کو نظر بد سے بچائے، شریروں کے شر حاسدوں کے اثر سے بچائے، اور آمین پڑھنے والے اور پڑھانے والے سب کی اللہ خیر فرمائے۔ ایک چھوٹا سا آمین میسیج ہے، اللہ اکبر۔ ویسے تو میں نے نیت ذاتی طور پہ کی تھی، لیکن چلو بتا دیتا ہوں کہ بچے آ رہے ہیں ہمارے پاس رات کو پڑھنے کے لیے، تو ایک بچہ بھی اس کے بارے، بچے کی عمر ہونی ہے کوئی تقریباً کوئی 14-15 سال ہونی ہے، 16 سال ہوگی شاید، ہاں اتنی ہی ہونی ہے، 16 سال تقریباً ہونی ہے۔ تو وہ کل اس نے چھٹی کی پرسوں، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیوں نہیں آئے تھے؟ وہ کہنے لگا کہ اس نے پھر سٹوری بتائی نا، کہنے لگا کہ میں ایک دکان پہ کام کرتا ہوں پرچون والی، تو مجھے پہلے اس کے بارے میں پتا تھا کہ وہ حافظ قرآن ہے، حافظ ہے۔ تو میں نے کہا پرچون کی دکان پہ کام کرتے ہو؟ تو کہہ رہا دیر ہو گئی تھی تو میں نہیں آ سکا۔ میں نے کہا پرچون تم پڑھتے نہیں ہو، اسکول نہیں پڑھتے؟ مجھے تو یہ پتا تھا کہ تم اسکول پڑھتے ہو دن کے ٹائم۔ کہنے لگا نہیں، میں نے 5 کلاسیں پڑھی ہیں اور اس کے بعد حفظ کیا تھا۔ تو میرے والد صاحب وصال پا گئے، تو والدہ پہلے فوت ہو گئی تھیں، تو والد بعد میں فوت ہوئے۔ تو اس کے بعد پھر گھر کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، میں ایک ہی بیٹا ہوں، تو 3-4 ان کی بہنیں ہیں۔ تو کہہ رہا ہے جی میں پرچون کی دکان پہ کام کرتا ہوں تو 500 روپیہ وہ مجھے دیتے ہیں دیہڑی، تو وہ اس سے گھر سے کے اخراجات وغیرہ چلتے ہیں۔ مجھے دیکھ کے بہت ہی یعنی دلی رنج ہوا، اور رات کو ہی پھر میں نے اس کو اسکول کے اندر داخل کروایا۔ میں نے کہا تیری تمام فیسیں میں دوں گا، تیرے جتنے معاملات ہیں میں دوں گا، 15,000 روپیہ تیرا بنتا ہے تقریباً، تو وہ بھی میرے ذمہ، تو نے اسکول پڑھنا ہے۔ تو بہرحال ہمارے جامعہ میں اس قسم کے بھی طالب علم ہیں بھائی۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی، تو چلو میں نے سوچا کہ بتا دوں۔ چلیں جی، رب رکھا جی، مجھے اجازت دیں جی، میں نے پھر جامعہ کے لیے ابھی نکلنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ، السلام۔ جزاک اللہ الخیر جی شاہ جی۔ کیا ان فتنوں کو دیکھ کر آپ کا دل نہیں ٹوٹتا؟ کیا آپ دکھ نہیں محسوس کرتے کہ امت مسلمہ، امت محمدیہ کتنی دور جا رہی ہے، اور یہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں، اور ان فتنوں کے اندر یہ امت مسلمہ گر رہی ہے؟ ہم ایک جامعہ بنا رہے ہیں، جامعہ ختم نبوت، جس کے اندر تقابل ادیان اور مذاہب کی تعلیم دی جائے گی۔ نو مسلمین کو دعوت دی جائے گی کہ وہ آ کے ہمارے پاس پڑھیں، جہاں پر لڑکوں کو بھی تعلیم دی جائے گی اور لڑکیوں کو بھی تعلیم دی جائے گی۔ ایسے علماء اور سکالر تیار کیے جائیں گے کہ جو غیر مسلموں کے اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات دے سکیں گے۔ جامعہ ختم نبوت کی اراضی خریدنی ہے، وہ 2 کنال جگہ جناب آپ کی منتظر ہے، اور مخیر حضرات کی منتظر ہے کہ مخیر حضرات توجہ فرمائیں، اور کم از کم یہ جگہ سب سے پہلے ہم خرید لیں، اس کے بعد اس کی تعمیرات کے مراحل ہوں گے۔ تو ابھی یہ زکوٰۃ نکالنے کے ایام ہے، رجب، شعبان اور رمضان، تو دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی زکوٰتیں کم از کم جو ہیں یہ جامعہ ختم نبوت کو دیں۔ یہ تو زکوٰۃ تو آپ کے اوپر فرض ہے، آپ نے نکالنی ہی نکالنی ہے۔ اپنے رزق حلال میں سے بھی آپ نکال کے یہ جامعہ کی جو اراضی ہم نے خریدنے کی کوشش کی ہے اور اعلان کی ہے،
اس کے اندر ہماری مدد کریں۔ اللہ حضرت فاضل بریلوی نے اپنا 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا، جس کے اندر سب سے پہلے ہی انہوں نے چیز یہ رکھی کہ ایسے عظیم الشان مدارس کھولو کہ جو امت مسلمہ کے عقائد اور نظریات کی حفاظت کر سکیں۔ تو اللہ حضرت فاضل بریلوی کے اس خواب کو آپ لوگوں نے پورا کرنا ہے اور جامعہ ختم نبوت بننا چاہیے، اور اس کے بنانے کے اندر مخیر حضرات سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس کی طرف توجہ فرمائیں اور کم از کم یہ جگہ پہلے لے لیں، اس کے بعد تعمیرات کی کمپین ہم چلائیں گے۔ اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔